Okay, so can you see my laptop screen? Yes, sir. Okay, so today the topic of our discussion is force vibration of a single degree of freedom system. This is chapter number 3, the next chapter in that book by S.S. Rao. So today we will discuss the topics that are included in your course in that particular chapter. Okay. Okay. So as I told you that you need to know the previous, you need to study and refresh the previous topics when you are going from one chapter to another chapter. So this is, we will also be using in today's class some of the concepts that we developed in our previous classes. Okay. So here you can see that what is this? This is the force vibration, right? Force vibration, and obviously we are talking about single degree of freedom system. So it is obvious from the equation of motion. We have a single equation of motion, so that is single degree of freedom system, right? And obviously, translatory system we are studying first. Okay. Now, I put some introductory slide in front of you just to look at what force vibration is. So in free vibration system, a system once disturbed from its equilibrium position, it creates vibration because of its elastic property. You disturb the system, you initially apply the force on the system, then you remove that force and the system vibrates with its natural frequency because of its elasticity present over there. So that is actually the uh, free vibration, okay, because you have disturbed the system initially and then you remove that disturbance. So that is basically free vibration, and the system will come to rest depending upon its damping characteristics. You know that if it is underdamped, if it is undamped system, it will even not come to rest. Okay, ideally it should vibrate forever, and if it is underdamped, overdamped, and critically damped system, it will regain its equilibrium position. But you know very well that how much time it will take. So it depends on the damping characteristic. So if it is overdamped, it will take longer time. If it is underdamped, it will also oscillate and take longer time. But if it is critically damped, it will take less time and it will regain its equilibrium position. So this actually means that based on the damping characteristics, if you have initially disturbed the system and the system undergoes free vibration, it will come to rest depends on the damping characteristics. Okay. In case of forced vibration, what happens is that there is an impressed force all the way acting on the system, which keeps it vibrating. ठीक है. So in forced vibration आपके पास क्या होता है कि the force is constantly applied on the system, and the system obviously vibrates, with that force. So this is actually known as forced vibration. ठीक है. यहाँ पे we are not removing the force. The force is constantly applied on the system. So if a force is applied on the system and the system vibrates, that vibration is actually known as force vibration, right? And the examples of force vibration, lots of examples are there. If you have installed, let's say, air compressors, and there are some vibration in the internal combustion engine, some machine tools, and similarly some other machines like lathe machines, milling machines. If there are unbalanced over there and the system vibrates, so as far as the machines are running, a constant force is applied on the system and the system will vibrate. Okay, and that vibration will be known as a force vibration. इसकी simple example आप इस तरह ले सकते हैं कि if you have, for example, if you have, let's say, reciprocating pump, ठीक है, आपके पास एक reciprocating pump है, right? And let's say that is rested upon vibration isolators. बड़े बड़े पंप होते हैं, तो एक्टिव वाइब्रेशन आइसोलेटर्स के ऊपर जो है ना वो पड़े होते हैं, राइट? So let's say, for example, this is that vibration isolator, and for example there is an unbalanced over there. ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि due to this system that is operating, right, the system will vibrate, and that vibration is taken up by this vibration isolator. Now
जब तक आपके पास ये मशीन चलती रहेगी तो ये वाइब्रेशन यहाँ पे होगी, जब आप इस मशीन को बंद कर लेंगे द वाइब्रेशन विल वैनिश. सो दैट इज बेसिकली अ सिंपल एग्जांपल ऑफ फोर्स वाइब्रेशन, राइट? ओके. नाउ सर एक्सक्यूज मी सर, जी, सर ये दोबारा समझाइए, एग्जांपल समझ नहीं है सर ये। ठीक है। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फोर्स वाइब्रेशन में हमारे पास कॉन्स्टेंटली फोर्स लगती है सिस्टम के ऊपर. तो वो फोर्स जो है ना किसी भी तरीके से लग सकती है, ठीक है? यानी किसी भी तरीके से लगने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो बाजू का आपने देखे होंगे टॉप रूफ के ऊपर जो इंस्टॉलेशन होती है ना, तो अगर बड़े बड़े इंस्टॉलेशन है तो उसके नीचे जो है ना छोटे छोटे इस तरह के पैकेज टाइप के वाइब्रेशन आइसोलेटर्स लगे होते हैं. वाइब्रेशन आइसोलेटर में बेसिकली आपके पास ये चीज होती है, अच्छा, इनसाइड. ऐसे वाइब्रेशन आइसोलेटर भी होते हैं, जैसे रबर आपने देखा होगा, इतनी थिकनेस का रबर जो है ना वो नीचे पड़ा होता है. दैट इज आल्सो सॉर्ट ऑफ ऑसिलेटर, वाइब्रेशन आइसोलेटर, ठीक है? तो अगर इसके ऊपर कोई इंस्टॉलेशन है, कोई मशीन पड़ी हुई है, ठीक है, चाहे लेथ मशीन हो या कोई टूल हो, इस तरह इंटरनल कंबशन इंजन हो, तो उसमें जो है अगर अनबैलेंस प्रेजेंट है, देन ड्यू टू दैट सिस्टम में वाइब्रेशन है, ठीक है, तो सिस्टम वाइब्रेट, तो सिस्टम वाइब्रेट करेगा. अब ये वाइब्रेशन अगर फॉर एग्जाम्पल ये आइसोलेटर फील करता है ना, तो तब तक ये फील करेगा या तब तक इसमें जो है ना वाइब्रेशन होगी जब तक आप इस मशीन को चलाएं. जब इस मशीन को आप बंद कर देंगे, there will be no force applied on the system and the system will stop vibrating. ठीक है, तो ये वाइब्रेशन जो है इसके खत्म हो जाएगी. इसके हमारे इस लेक्चर के एंड में जो है ना मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, उसमें भी आपके पास ये चीज है, ठीक है, कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू हैव ये रोटेटिंग अनबैलेंस के बारे में हमने पढ़ा हुआ था, इफ यू रिमेम्बर, राइट? तो ये चीज जो है ना अगर चले यहाँ पे ही मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. दैट इज एक्चुअली योर असाइनमेंट, बट लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू हैव दिस सिस्टम, ठीक है, लेट्स से दिस इज अ स्प्रिंग एंड यहाँ पे आपके पास जो है ना ये डैम्पर है एंड दिस इज लाइक दिस, ठीक है. यहाँ पे आपके पास एक रोटेटिंग मास है, ठीक है, द मास इज रोटेटिंग लाइक दिस. ये मास जो है ना 360 डिग्री रोटेशन कर रही है, ठीक है. नाउ अगर ये रोटेशन कर रही एंड यू नो वेरी वेल दैट वी हैव प्रोहिबिटेड और कंस्ट्रेन्ड द मोशन इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमने मोशन को कंस्ट्रेंट किया हुआ है. मोशन जो है सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास हो सकती है. So you can see here that when the mass is let's say in this position, right? So our centrifugal force is applied here. ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और इसके दो कंपोनेंट्स होंगे. वन विल बी दिस कंपोनेंट एंड द अदर विल बी दिस कंपोनेंट. नाउ सिंस वी हैव रिस्ट्रेन्ड द मोशन इन दिस, तो ये जो कंपोनेंट है ना ये मोशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता. सो यू कैन से दैट इफ द मास इज इन दिस पोजीशन, component of the force is acting upon the body in the upward direction. लेट्स से फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आ जाता है, ये मास रोटेट करते हुए, तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगी एंड इफ इट कम्स हियर, तो अ फोर्स विल बी अप्लाइड हियर एंड विल बी हैविंग टू कंपोनेंट्स हियर एंड हियर. दिस इज कंस्टेंट. और अगर ये नीचे आता है हियर, so there is the force and this is the horizontal, this is the vertical component. Horizontal is actually not counted because the motion is strained over there. तो ये vertical आपके पास component होगा. So you can see that when this mass is rotating, ठीक है, 360 डिग्री जब ये रोटेट करता है, द फोर्स आइदर इन द अपवर्ड डायरेक्शन और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम, ठीक है. इसको आप जो है ना साइनोसाइडल फोर्स भी कह सकते हैं कि भाई आपके पास जो है ना इस तरह की फोर्स लग रही है इसके ऊपर, ठीक है, या अप या डाउन, अप या डाउन. इस फोर्स की वजह से जो है ना क्या होगा कि यहाँ पे ये जो आपके पास सिस्टम है ये फोर्स वाइब्रेशन को फील करेगा, राइट? द फोर्स वाइब्रेशन विल बी हियर, ठीक है. तो जब तक ये मास रोट, अच्छा, इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालना, ठीक है. तो ये जो है ना हमारे पास ये उस असाइनमेंट का थीम है कि वी हैव द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर दिस रोटेटिंग अनबैलेंस ऑफ दिस मास, ठीक है. बुक में भी है लेकिन जस्ट आप जो है ना इसको एज असाइनमेंट लेंगे, ये एंड में मैं आपको बता दूंगा. आई वाज जस्ट टेलिंग यू हियर कि जब तक ये मास रोटेट करेगा ना, द फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन द सिस्टम. ये मास की रोटेशन अगर बंद हो जाए तो देयर विल बी नो फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम एंड द सिस्टम विल कम टू रेस्ट, ठीक है. तो इस किस्म की चीजें, इसको हम कहते हैं फोर्स वाइब्रेशन. अब समझ आ गई आपको? यस सर। Yes, sir. ओके. नाउ देन देयर देयर मे बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स,
ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के फोर्सेस हो सकती हैं। ठीक है, जिस तरह इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक वाइब्रेशन। डिटर्मिनिस्टिक वाइब्रेशन वो होता है जिसमें हमें इनपुट का पता हो कि भाई कौन सी फोर्स लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो फोर्स है वो डिफरेंट हो सकती है। द फोर्स कुड बी हार्मोनिक फोर्स, द फोर्स कुड बी एनी अदर पीरियोडिक फोर्स। ठीक है, हार्मोनिक फोर्स ये है, ये जो कि आज का टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बल्कि लेट मी हैव दिस स्लाइड। द फोर्स कुड बी हार्मोनिक फोर्स, जिस तरह ये है। द फोर्स कुड बी एनी पीरियोडिक फोर्स। ठीक है, और द फोर्स could be any impulse force, right? So different types के जो है ना हमारे पास ये forces हो सकती हैं, right? So wait, right? So we have different types of forces. So we will in today's class we are actually discussing this harmonically excited vibration, that the force is applied on the system and that force is a harmonic excitation. You know very well कि अगर आपके पास जो harmonic force है, this is of this type, right? So this is for example, this is your harmonic force. ठीक है, this is f of t and this one is a time. So this is actually known as harmonic excitation. ठीक है, यानी फोर्स आपके पास है बट दिस चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाउ दिस चेंजेस, वो चेंज जो है ना आपके पास साइनोसाइडल चेंज है, इस तरह इसको हम कहते हैं हार्मोनिक एक्साइटेशन। ये आज की क्लास में जो है ना हम डिस्कस करेंगे, राइट? एंड देन आपके पास इस तरह की फोर्स भी हो सकती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एनी पीरियोडिक फोर्स, राइट, जो कि रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इस तरह की पीरियोडिक फोर्स भी आपके पास हो सकती है। सिमिलरली वी कुड हैव सम इम्पल्स फोर्स। ठीक है, आपके पास जो है ना इम्पैक्ट फोर्स हो सकती है, लाइक दिस इम्पैक्ट फोर्स। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेज हमारे पास हो सकती हैं, लेकिन जो आपके कोर्स में है वी विल डिस्कस अबाउट मेनली harmonically excited vibration. If the harmonic force is applied on the system, what will be the response of the system? How we can derive the equation of motions, and when you solve those motion, how you can find out the response of the system. ठीक है, तो ये चीजें जो है ना आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ये भी बेशक है, लेकिन इसमें हमारे पास फूरियर सीरीज और उस किस्म की चीजें आती हैं जो कि आपके कोर्स में नहीं है। सो फॉर दैट रीजन वी विल स्किप दीज थिंग्स एंड ये एडवांस वाइब्रेशन में पढ़ाई जाती हैं। एंड दीज थिंग्स the force that is harmonically excited vibration that we will discuss in today's class. ठीक है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now you know very well that here what do we mean by harmonic excitation? Harmonic, एक तो आप ये फोर्सेस आप लोगों ने पढ़ी होंगी ना अभी तक कि भाई देयर इज अ कांस्टेंट फोर्स एफ। ठीक है, जो कि न्यूटन में हम देखते हैं कि भाई दिस मच न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम चीजों को एलाबोरेट कहते हैं। व्हाट इफ देयर इज नॉट अ कांस्टेंट फोर्स बट द फोर्स इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम? अब ये जो वेरिएशन है ना, ये डिफरेंट हो सकती है। अगर ये वेरिएशन इस तरह है कि द फोर्स दैट इज एफ ऑफ टी इट वेरीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड हाउ इट वेरीज, इफ इट वेरीज लाइक दिस, इफ नॉट, ठीक है, ये आप डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म की लिख सकते हैं। इफ नॉट ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी लिख सकते हैं, आप जो है ना इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी लिख सकते हैं। एंड यू नो वेरी वेल दैट एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर इंटर कन्वर्टेबल यूजिंग आइलर इक्वेशन। तो ये जो है ना आपके पास इफ नॉट लेट्स से साइन ओमेगा टी
plus phi. This is representation of harmonic excitation. Where f naught क्या है? F naught, look, this is actually your f of t, and this is your time. Remember previously जो हमने पढ़ा था ना, that is response of the system. You see very well कि यहाँ पे time है, यहाँ पे x of t है, right? And let's say this is the maximum value, और इस तरह जो है ना ये साइनोसाइड करती है. This is the response of the system. ठीक है. This is बजाते खुद ये force है. How the force is varying. ठीक है, f of t. So this is actually the maximum value जिसको हम कहते हैं f naught from here to here. इसको हम कहते हैं f naught. और ये जो है ना अगर इस तरह साइनोसाइड करती है, ठीक है, so this is the representation of this one. ठीक है. इसको हम जो है ना फाई बेसिकली क्या है, फाई इज यहाँ पे लिखा भी होगा, द फाई वैल्यू डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी एट 0 0 पोजीशन. ठीक है. ये जो फेज है ना, फेज ये बेसिकली बताता है एफ ऑफ टी की वैल्यू को कि ये भाई आपके पास जो है ना एट कोऑर्डिनेट 0 0 यानी ओरिजिन के ऊपर क्या है. तो अगर आपका जो है ना फोर्स यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, इफ द फोर्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, बिल्कुल यहाँ से, तो फिर हम जो है ना ये नहीं लिखते, बल्कि हम डायरेक्टली लिखते हैं एफ नॉट साइन ओमेगा टी, राइट. बट इफ द फोर्स फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करता है, और तो आप यहाँ पे इसको अगर एक्सट्रापोलेट करें तो ये यहाँ पे आ जाता है. ठीक है. सो नाउ दिस इज बेसिकली योर फेज. ये फाई है आपके पास. ठीक है. सो ये एफ नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स. हाउ दिस वेरीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस साइन ऑपरेट्स ऑन दिस आर्गुमेंट. इसके ऊपर जो है ना ये ऑपरेट करता है. एंड यू नो वेरी वेल ये जो आपके पास थीटा ही है. अच्छा, तो अल्टीमेटली अगर इसको मैं बड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं ना, तो ये असल में ये है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ नॉट, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, एंड से इसको आप साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, काज भी लिख सकते हैं, साइन साइन थीटा आई शुड राइट. तो दिस इज एक्चुअली हार्मोनिक एक्साइटेशन. ये रिप्रेजेंटेशन जो है ना आपके पास क्या है, दिस इज हार्मोनिक एक्साइटेशन. अब इसको बड़ा सिंप्लीफाई करके हमने लिखा है. व्हाई? बिकॉज यू नो दैट थीटा बाय टी इज योर ओमेगा. तो ये जब इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए तो आपके पास ये थीटा आपके पास आ जाएगा, एंड दिस विल बी ओमेगा टी. तो यहाँ पे ओमेगा टी हम लिखेंगे, और फेज अगर आप डाल दें तो फिर जो है ना हम यहाँ पे फाइव भी लिखते हैं. तो ये इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है. ये जो है ना दूसरा जो हमने लिखा स्पेसिफिक और रिड्यूस्ड फॉर्म है इसका. Now, if the system vibrates with harmonic excitation, तो आपके पास जो है एक वही तरीका होगा कि how you can derive the equation of motion 1, how you can find out the natural frequency 2, and then how you can find out the response of the system. तो इन चीजों को जो है ना आगे स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे, राइट. So if you look at the same figure that we discussed earlier, but this time a constant force is applied on the system. Previously, if you remember, there was no this such force over here. The force was there, but it was removed after initial disturbance. So we have a mass, and that is attached to this fixed support with the help of spring and damper. And we have this as equilibrium position, and the direction in which this mass is initially moving is taken as positive. तो डाउन डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं. और दिस इज एफ ऑफ टी, और ये एफ ऑफ टी क्या है, दिस जो अभी मैंने आपको बताया कि दिस एफ ऑफ टी इज बेसिकली योर harmonic excitation, right? Now you need to initially disturb the system and draw the free body diagram, और वो फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह होगा. तो फोर्स जो है ना आपके पास इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एट कर रही है, एंड ऑब्वियसली these two will resist. This will resist the velocity because you are applying a force on the system, and this will resist the displacement. तो ये दो forces जो resistive forces हैं, ठीक है, spring force and then damper force, and this is actually that one. Now if you apply summation of forces acting upon the body equal to inertia force, तो इसको जब आप करेंगे ना तो आपके पास क्या आ जाएगा, you know this direction is taken is positive. तो ये जो है ना आपके पास प्लस एफ ऑफ टी होगा, और ये दोनों माइनसेस होंगी, एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस वन. ठीक है. यानी आपके पास आ जाएगा माइनस के एक्स माइनस सी एक्स डॉट प्लस एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट. अब इसको आप रीअरेंज करेंगे ना तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी. ठीक है. दिस विल बी एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स, बट नाउ दिस टाइम वी डोंट हैव जीरो ओवर हियर, but there is a forcing function.
तो इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फोर्स्ड वाइब्रेशन, राइट? Now this now you can see here. Now here this is in ordinary differential equation one, second order differential equation two, and in variable x three. But this is not a homogeneous equation, but this is a non-homogeneous equation, जिसको आप heterogeneous equation भी कह सकते हैं, ठीक है? Now you know very well या आप जो है ना अपने नॉलेज को थोड़ा रिफ्रेश करें कि solution of non-homogeneous equation is a bit different from homogeneous equation. किस तरह डिफरेंट है आप जो है ना इसको खुद भी देख सकते हैं, शायद आगे कुछ एक आठ स्लाइड के बारे में हो, लेकिन बहरहाल नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, अ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है? तो इसका जो है ना यू नो वेरी वेल कि हमारे पास जो इसका सोल्यूशन होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे आपके पास जीरो होता, ठीक है, सो वी हैव, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, कि वी हैव एक्चुअली एक्स ऑफ टी, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू समथिंग, but here this is basically homogeneous solution, is I should say x h of t, ठीक है? यहाँ पे जो है ना आपके पास क्या है, we have नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में हमारे पास जो सोल्यूशन होता है ना, वो दो सोल्यूशन होते हैं, ठीक है? एक होता है आपके पास, दिस इज बेसिकली द सुपरपोजिशन ऑफ टू, दिस इज द टोटल सोल्यूशन, दैट इज द होमोजीनियस सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है? तो जो टोटल आपके पास होता है टोटल सोल्यूशन, दैट इज द होमोजीनियस सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये कहां से आया है? ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो इस तरह होता है। अच्छा, ये चीज जो तो इसमें एक्सक्यूज मी सर, ए, सर ये क्वेश्चन दोबारा बताइए, इसकी समझ नहीं आई सर। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं ये बता रहा हूं आपको कि नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है? कहां से आया है, यू नो, ठीक है? यस सर। ओके, नाउ इट इज टू सॉल्व दिस इक्वेशन, बात समझ आ गई आपको? यस सर। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, नॉन होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? थोड़ा बहुत हम यहाँ पे डिस्कस भी कर लेते हैं कि इसका जो सोल्यूशन होता है ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू हैव दिस थिंग, इफ mx डबल डॉट प्लस kx डॉट प्लस kx इज इक्वल टू जीरो, ये तो हमने पढ़ा है, और इसका जो सोल्यूशन हमने निकाला था ना, यू नो वेरी वेल, दैट वाज x h of t, ठीक है? इसको हम होमोजेनियस सोल्यूशन कहते हैं, and that was equal to, if you remember, that was I think a1 cos omega nt plus a2 sin ओमेगा nt, ठीक है? ये यही सोल्यूशन था हमारे पास, ठीक है? ठीक है, ये अगर यहाँ पे ची है तो ये इसके साथ जो है ना ये टर्म्स चेंज हो जाएंगी, ठीक है? बिकॉज आई शुड से दिस इज एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये इसके लिए ये सोल्यूशन था, ठीक है? अब ये जो है ना हमारे पास ये क्या है, दिस इज नॉट जीरो हेयर, यहाँ पे फोर्सिंग फंक्शन है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें हमारे पास दो सोल्यूशन होती हैं, एक को हम कहते हैं होमोजेनियस सोल्यूशन, दूसरे को हम कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है? तो टोटल सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द नॉन होमोजेनियस इक्वेशन इज बेसिकली द एडिशन ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ द होमोजेनियस प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है? तो ये तो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास टोटल सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशन इज इक्वल टू होमोजेनियस प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन है, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे पास ये जो चीज है ना, इसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ द सिस्टम, ठीक है? दिस इज नोन एज ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ द सिस्टम, राइट? सो इफ यू प्लॉट t अगेंस्ट x ऑफ t, प्रीवियसली हम जो है ना इसको डायरेक्टली x ऑफ t कहते थे, इफ यू रिमेंबर, फॉर अंडरडैम्प्ड सिस्टम, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे पास दो सोल्यूशन है तो इसको हम होमोजेनियस x h ऑफ t कहते हैं। ये आपने अंडरडैम्प्ड सिस्टम के लिए पढ़ा होगा, ठीक है? कि आफ्टर सम ऑसिलेशन इट regain its equilibrium position। इस रिस्पांस ऑफ द सिस्टम जो कि होमोजेनियस सोल्यूशन से रिलेटेड है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ द सिस्टम। और ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ द सिस्टम जो है ना, दिस इज एसोसिएटेड विद फ्री वाइब्रेशन बिकॉज इट वेनिशेस आफ्टर सम टाइम, ठीक है? दूसरा जो है ना आपके पास क्या है, दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन, t अगेंस्ट x ऑफ t,
ठीक है। तो ये जो है ना आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन है, एंड दिस इज नोन एज स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स बेसिकली इज ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम। ठीक है, लुक फॉर एग्जांपल लेट्स से हम इसी इक्वेशन को ले लेते हैं, बल्कि इस सिस्टम को ले लेते हैं। फिजिकली क्या होता है कि यू अप्लाई द फोर्स ऑन द सिस्टम, तो जो आपके पास जो मास है ना ये यहाँ पे आ जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल नाउ दिस इज द डिस्प्लेस पोजीशन एंड यू मेड ड्रॉ दिस फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, अब यू सी यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो ये नीचे आ गया ना, तो ड्यू टू सिस्टम प्रॉपर्टीज, ठीक है, सिस्टम प्रॉपर्टीज की वजह से जो है ना ये वाइब्रेट करेगा, राइट। ये वाइब्रेशन जिसको हम फ्री रिस्पांस भी कह सकते हैं, ये फ्री रिस्पांस होगी इसकी, राइट, बट इट विल स्टॉप, इट विल वेनिश आफ्टर सम टाइम। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास होगा तो ये फोर्स की वजह से ही रिस्पॉन्ड करेगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर आप फिर जो है ना मशीन को बंद कर दें, सिस्टम के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसको आप जो है ना खत्म कर दें, बंद कर दें, तो क्या हो जाएगा कि सडनली जो है ना वो रिस्पांस ऑफ द सिस्टम भी जीरो हो जाएगा। वाई? बिकॉज आफ्टर सम टाइम, like you know, there is the total response of the system, that is basically the transient response plus steady state response. The transient response is associated with free vibration, ठीक है, and this is associated with forced vibration. तो ये जो है ना हमारे पास इनिशियली होता है, लेकिन उस after some time it becomes zero and the system vibrates, जो total response होता है that is basically the steady state response, ठीक है, and this total response is purely it purely depends on the force. When you know remove that force को आप बंद कर दें, खत्म कर दें, तो आपके पास ये रिस्पांस भी जो है ना सडनली बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो we have the transient response of the system that is associated with homogeneous solution, and we have steady state response of the system that is associated with a particular solution. And if you superimpose or if you want to find out the general solution, ठीक है, ये आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा होगा, तो हमारे पास जो है ना ये होमोजीनियस सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन के बराबर होता है। और यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन है, दिस वन, ये जो आपके पास डॉटेड है या डैश लाइन है, this is a transient solution, ठीक है, and the solid one is the steady state solution. So you can see here that after this time interval, ये tau जो है ना ये वो time period वाला नहीं है, ये आपके पास the time the system takes to get its original position or equilibrium position, इसको हम यहाँ पे tau कहते हैं। ठीक है, तो इस tau के बाद जो आपके पास response of the system है ना, you can see what is this, this is actually x of t, total response। तो ठीक है, यहाँ पे तो सुपर इम्पोज एक चीज के ऊपर हो रहा है, लेकिन आफ्टर दिस टाउ टोटल रिस्पांस ऑफ द सिस्टम इज प्योरली व्हाट, इट इज साइनोसॉइडल। तो ये फोर्स की वजह से होता है हमारे पास। ठीक है, इट इज एसोसिएटेड विद फोर्स, राइट। Yes, sir. ओके, so after discussing that what is a non-homogeneous ordinary differential equation of second order and how to solve that equation to get the homogeneous plus particular solution and transient plus steady state response, now we are actually trying to solve that equation। ठीक है, now solution of equation में हम Excuse me, sir. सर ये टाउ क्या शो करता है सर? वो टाइम जिसमें आपके पास सिस्टम इनिशियली जब आप डिस्टर्ब करें और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर उसका ट्रांजिएंट रिस्पांस खत्म हो जाए, दैट्स इट। ठीक है, फ्री वाइब्रेशन उसका खत्म हो जाए ड्यू टू द सिस्टम, तो उसको हम कहते हैं टाउ, इतना टाइम जो लेता है। ओके सर। ओके, नाउ यहाँ पे सिंस यू आर गोइंग टू सॉल्व द इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हमने डिराइव किया है, तो इसको बुक जो है ना पहले क्या करता है, इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करता है और उसके बाद जो है ना फिर उसको थोड़ा सा कम्प्लेक्स लेके आता है। तो सिंप्लीफाई का क्या मतलब है कि रिस्पांस ऑफ एन अनडेम्प्ड सिस्टम, तो इससे डैम्पर निकाल देता है। ठीक है, इट एक्चुअली रिमूव्स द डैम्पर, राइट। तो अगर यहाँ से डैम्पर आप निकाल लेना तो सी एक्स डॉट का टर्म जो है वो खत्म हो जाएगा। बात समझ आ गई? वी आर बेसिकली अनडेम्प्ड सिस्टम में आपके पास दिस विल बी जीरो, for this undamp system this will be zero, and you know very well that f of t is in this case हार्मोनिक एक्साइटेशन। तो हार्मोनिक एक्साइटेशन को मैंने आपको बताया कि इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे है। तो ये जो हम टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं ना, दिस इज व्हाट
एक तो अनडेम्प्ड है तो उसके बाद का टर्म खत्म हो जाएगा। एंड अंडर हार्मोनिक फोर्स, तो फोर्स इज नाउ एफ ऑफ टी, एंड दैट एफ ऑफ टी पर्टिकुलरली जो है ना आपके पास क्या है, दैट इज दिस वन। ठीक है, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दी। अच्छा, कि ये जो है ना फोर्स की रिप्रेजेंटेशन है, यानी हम अभी जो है ना कांस्टेंट फोर्सेज नहीं पढ़ रहे, ठीक है, कि दिस इज एक्चुअली अ कांस्टेंट फोर्स, नो, a static force. We are actually talking about the force that is changing with respect to time and how it changes. अब इसके चेंजेस के डिफरेंट तरीके हैं। जो आपके पास एफ आर टी इक्वल टू एच एफ आर पीरियोडिक फोर्स है ना, तो वो भी आपके पास कोई फंक्शन होगा। सिमिलरली इफ यू हैव इम्पैक्ट फोर्स, तो ये भी आपके पास कोई फंक्शन होगा। आज जो है ना हम इसको हार्मोनिक फोर्स को पढ़ते हैं, तो दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन। और इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैं आपको बता दी, ठीक है, कि दिस इज एक्चुअली द एफ नॉट, ठीक है, इसको हम स्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। एंड हाउ इट वेरीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इस तरह ये वेरी करता है। ठीक है, okay. Now, obviously, if you remove that CX dot and put in place of f of t, f not cos omega t, तो आपके पास जो है ना ये इक्वेशन जो आपके पास प्रीवियसली था, वो ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, वेरी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ओके, नाउ ये मैं आपको बता रहा था कि नाउ हियर you know very well that we will be having what? We will be having the total solution of the system, and that will be equal to what? The homogeneous solution x h of t plus x p of t, that is particular solution. Remember, ये जो x h of t है ना, ये फ्री रिस्पांस या फ्री वाइब्रेशन के साथ एसोसिएटेड है। पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है ना, ये फोर्स वाइब्रेशन के साथ एसोसिएटेड है, राइट। बट एनीवे, यू नो वेरी वेल कि remember that we are discussing about response of the system. In other words, we are going to solve this equation, ठीक है, and that solution is एक, ये आपकी बुक में बड़ा डिटेल से है, यहाँ पे आप समझे और वहां पे फिर जो है ना आप देख लें जो चीजें रह गई हो, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझे। एक्स टी इज इक्वल टू दिस होमोजीनियस सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब ये होमोजीनियस सोल्यूशन ऑलरेडी हमने डेवलप किया हुआ है। व्हाट इफ यू राइट एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर आप लिख लें तो इसका इक्वेशन हमने डेवलप किया था ना, दिस वाज एक्चुअली दैट इक्वेशन प्रीवियसली। x of t is equal to c1 या a1 cos omega in t plus c2 sin omega in t. This is actually x h of t, right? So we know about this from the previous discussion, जिसमें you know कि आपके पास ओमेगा इन किस चीज के बराबर है। ठीक है, अब the problem is that the thing that is remaining is to find out the particular solution. ठीक है, तो अगर ये पर्टिकुलर सोल्यूशन हम किसी तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, सो दैट विल बी द टोटल सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम, आर इन प्रैक्टिकल वर्ड्स द टोटल रिस्पांस ऑफ द सिस्टम, दैट्स इट। ठीक है, तो इसको अभी हम प्रूव करने जा रहे हैं। सो यू सी दैट फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन वी आर कंसिडरिंग दैट एक्स पी ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। ये बेसिकली आपके पास क्या है, दिस इज एज्यूम्ड सोल्यूशन, जिस तरह प्रीवियसली हम करते थे। ठीक है, so this is the maximum value and how it varies like this. ठीक है, so this is actually xp of t, ये assumed solution है। अच्छा, ये भी मैं आपको बताया कि assumed solution जो है ना, हम क्यों यहाँ पे x cos omega t या कैपिटल x sin omega t लेते हैं। देयर इज अ थंब रूल दैट इज नोन एज इनपुट फॉलोज आउटपुट रूल। तो आपका जो इनपुट है दैट इज हार्मोनिक या साइनोसाइडल, तो आपका जो आउटपुट है ना, वो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दैट विल आल्सो बी सम सॉर्ट ऑफ साइनोसाइडल रिस्पांस। बात समझ आ गई। तो इसलिए जो है ना, क्योंकि हमारे पास क्या है, दिस इज इफ नॉट कॉज ओमेगा टी, दिस इज द इनपुट टू द सिस्टम, right? And due to this force, this is the output from the system. Obviously, इसमें फर्क होगा। ठीक है, let's say for example, if this is your this is for example your f of t and this is time, तो ये जो आपके पास साइनसॉइड करता है, ये जो आपके पास ये चीज है ना, ये दिस कुड बी डिफरेंट फ्रॉम जो कि एक्स ऑफ टी के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो इसके मैग्नीट्यूड में फर्क होगा, लेकिन इसका जो सेंस है वो सेम होगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं इनपुट फॉलोज आउटपुट रूल। एनीवे, तो ये अगर आप कंसिडर कर लें, वी आर नॉट गोइंग इनटू दिस डिटेल। अच्छा, इसमें भी डायरेक्टली क्या है, योर एक्स इज इन अ कांस्टेंट दैट डिनोट्स द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, एक्स की ऑफ टी इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड शो करता है यहाँ पे।
जो आप देख रहे हैं, ठीक है। एक्स ऑफ टी का जो मैक्सिमम है ना, ये जो है इसको ये शो करता है, ठीक है, जितना भी मैक्सिमम आपके पास है, राइट। तो ये चूंकि लेट्स सी, हाँ, यहाँ पे बाय सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3.5, ठीक है, ये 3.5 इक्वेशन है, दिस वन, ठीक है, इनटू इक्वेशन 3.3, 3.3 क्या है, ये है, ठीक है। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे फॉर कैपिटल एक्स, क्या मतलब है कि इसमें पुट करें, यू नो, लेट मी रब दिस लिटिल बिट, लुक, यहाँ पे जो है ना, एक्स की जगह आप डायरेक्टली ये पुट करने हैं, पुट दिस वन, एंड इसी को आप डबल डिफरेंशिएट करें तो ये डबल डॉट आ जाएगा। तो डबल डिफरेंशिएट करके यू नीड टू पुट इट हियर, राइट, एंड दिस विल रिमेन लाइक दिस, एंड देन यू सिंप्लीफाई दिस फॉर, बिकॉज यहाँ पे कैपिटल एक्स आ जाएगा ना यहाँ पे कहीं, तो सिंप्लीफाई दिस फॉर एक्स, यू विल गेट दिस थिंग, ठीक है। बुक ने इसको डायरेक्टली किया है, बहरहाल इसमें कोई इंजीनियरिंग इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट यू कैन हैव दिस थिंग लाइक हियर, राइट। अब यहाँ पे कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट बाय के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे जो सर सर जी एक्स एच ऑफ टी पुट नहीं करेंगे सर? वो तो बाद में पुट करेंगे ना, अभी तो हम लिस्ट, यू कैन से दिस इक्वेशन इज स्टेरिक, इक्वेशन स्टेरिक, अभी हम इसकी तरफ नहीं आए, ठीक है। तो स्टेरिक इज बेसिकली, यू कैन से दैट दिस एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू this is x h of t plus x p of t. So now we have this thing and we are going to find out this thing later on, जो है ना हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो उस स्टेप की तरफ अभी हम नहीं गए, we are actually here, right? Okay, so यहाँ पे बहरहाल क्या किया गया है कि you know k is taken as common from denominator, यहाँ पे डिनोमिनेटर से k को कॉमन लिया गया है, अच्छा। तो यहाँ पे के है नहीं, आपको पता है कि वो अगर ना हो तो आप के को जो है ना मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से के आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे एम बाई के आ जाएगा, ठीक है, जो कि ओमेगा एन के बराबर है। बहरहाल ये सारा कुछ आप करके आपके पास जो है ना ये चीज आ जाएगी, ठीक है। ये अच्छा, ये यहाँ पे व्हाट इज दिस स्टैटिक डिफ्लेक्शन, थोड़ा सा मैं इसको अगर रैप कर लूँ तो और भी ये हो जाएगा। दिस इज बेसिकली, अगर यहाँ पे आप के को कॉमन ले लेंगे ना, ठीक है, तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एफ नॉट बाई के का एक टर्म आपके पास आ जाएगा, ठीक है, एफ नॉट बाई के, इफ एफ नॉट दैट इज द स्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ स्टिफनेस, इसको हम कहते हैं स्टैटिक डिफ्लेक्शन, यू नो, वो के बराबर होता है ना, और एक आपके पास एफ बाई के बराबर होता है। तो अगर ये फोर्स जो है ना ये क्या हो, दिस इज स्टैटिक फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स हो, ठीक है। तो जस्ट हम रिप्रेजेंटेशन की डिफरेंट करते हैं, वी आर नॉट सेइंग दिस इज एक्स, बट वी आर सेइंग दिस इज स्टैटिक डिफ्लेक्शन, द डिफ्लेक्शन ड्यू टू स्टैटिक फोर्स, इसको हम एफ नॉट बाई के को हम कहते हैं स्टैटिक डिफ्लेक्शन, डेल्टा एक्स टी स्टैटिक डिफ्लेक्शन, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, जी, सर ये स्टैटिक फोर्स का मतलब क्या है सर? तो अभी तो हम आगे जा रहे हैं ना, स्टैटिक फोर्स का क्या मतलब है, ठीक है। दिस इज यही चीज हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट स्टैटिक एंड डायनामिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स क्या है। लुक, you see here we have x is equal to kx, से हम देख लेते हैं, ठीक है। तो x that is the displacement is force by k, ठीक है, ये चीज हमारे पास। लेकिन अगर हम यहाँ पे दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स, ठीक है, जिसको हम स्टैटिक फोर्स भी कहते हैं या मैक्सिमम फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो इनिशियल डिफ्लेक्शन होती है ना ड्यू टू दिस फोर्स, इनिशियली आपने यानी जैसे ही आप फोर्स लगाते हैं on the system, ठीक है, let's say for example this is the system, this one, and you initially apply the force, तो ये जो initial force होती है ना that is if not, फिर जो है ना ये उसके बाद ये वेरी करती है। तो ड्यू टू दैट इनिशियल और स्टैटिक फोर्स जो सिस्टम का रिस्पांस होता है ना उसको हम कहते हैं स्टैटिक डिफ्लेक्शन। मैं बाबू बात की उसके बाद सर मतलब इनिशियल पोजीशन
इनिशियल पोजीशन पे जो फोर्स लगेगा उसको हम स्टैटिक फोर्स कहेंगे। नहीं, इनिशियल सिस्टम की जब आप फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जब आप उसको नीचे लेके आते हैं, ठीक है, तो या ऊपर लेके जाते हैं, जिस तरह भी आप डिस्टर्ब करते हैं, तो जो फोर्स होगा ना, इनिशियल आपके पास क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो फोर्स होगी वो आपको मैक्सिमम मैक्सिमम फोर्स जो है ना इसके ऊपर लगेगी। उसके बाद सिस्टम भी जो है साइनसाइड करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, और बता के कुछ फोर्स भी रिस्पॉन्स करेगा, लाइक दिस। यहाँ तो अगर आपके पास, चलो हम इसको इस तरीके से ड्रा कर देते हैं, ठीक है, लेट्स दिस इज द मास, when you apply a force here in the downward direction, जैसे ही इसके ऊपर आप फोर्स लगाते हैं ये डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, तो इस डिफ्लेक्शन को हम कहते हैं स्टैटिक डिफ्लेक्शन। उसके बाद ये फोर्स भी चेंज होगी, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, और उसकी डिफ्लेक्शन, इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो भी चेंज होगा, ठीक है, तो उसको फिर हम कहते हैं डायनामिक रिस्पॉन्स, इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। लेकिन इनिशियली जो डिस्टर्बेंस होती है उसको हम कहते हैं स्टैटिक डिफ्लेक्शन, ठीक है, ड्यू टू दिस इनिशियल एंड मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो जो जिस तरह रिस्पॉन्स करेगा ना उसको हम कहेंगे डायनामिक रिस्पॉन्स। हम तो एक स्टैटिक रिस्पॉन्स होता है इनिशियल, और दूसरा जो है आपके पास डायनामिक रिस्पॉन्स है, राइट। ओके, ना यहाँ पे जनरल सोल्यूशन जिस तरह मैंने आपको बताया, तो जनरल सोल्यूशन आपके पास क्या है, दिस इज एच ऑफ टी एंड एच ऑफ टी। एच ऑफ टी जो है ना आपके पास इस चीज के बराबर है, राइट। और जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है दैट इज व्हाट, इस पर्टिकुलर सोल्यूशन दैट इज जो कैपिटल एक्स cos ओमेगा टी। अब ये कैपिटल एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, क्या यू नो, ये कैपिटल एक्स की वैल्यू है, इस वैल्यू व्हाट कैपिटल एक्स, तो क्या है, cos एक्स सेक्शन डिवाइड बाय 1 माइनस ओमेगा ओवर ओमेगा इन, ठीक है। तो यहाँ को आप पुट करेंगे ना, इन प्लेस ऑफ एक्स we can put this thing, and this is cos omega t. Now this is the total solution of this system, ठीक है, total solution, ठीक है। लेकिन still it is actually we need to elaborate it further. Why? We need to ask, yes, you know about this H naught, you know about K, you know about M, you know about omega, supporting function, and supporting frequency, ठीक है। यहाँ पे ये फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी है, तो ये मैं शायद आपको नहीं बताया, दिस इज एक्चुअली एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पे ये जो ओमेगा है ना, वो नॉट सेइंग दिस इज ओमेगा एन, दिस इज फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी। ये जो ये फ्रीक्वेंसी है ना, ये वाली इसकी फ्रीक्वेंसी है, साइनसॉइडल फोर्स की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है, दैट इज बेसिकली फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी। यही फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी जब आपके पास फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी के बराबर आ गए तो उसको हम जो है ना रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। एनीवे, तो दिस इज टोटल रिस्पांस ऑफ द सिस्टम। लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास, जी सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, उसमें नॉइज आ रहा है, शर शर की हो रहा है सर। फिर बात को सर अभी मेरी आवाज आपकी क्लियर आ आवाज रही है? मिसिंग। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सबको? सर का आवाज बीच बीच में। आवाज कैसी हो रही है? ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट? सर आवाज आपकी बीच में कट रही। अभी भी कोई है? मेरे पास नहीं है इस तरह, सिग्नल फुल है। अब आ रही है सर। Okay. So we are here, okay? And I was telling you that in this equation 3.7, um, except this C1 and C2, आपके पास almost सारी चीजें जो है ना राइट साइड के ऊपर दी आप known values, right? And that is the requirement, because if you want to find out the total response of the system, that is the combination of the transient plus response. You need to know everything at the right side except time t, ठीक है। तो C1 और C2 की वैल्यू को जब हम फाइंड करते हैं ना,
तो बहरहाल इसको आप खुद से कर लेते हैं, मतलब आप यू नो वेरी वेल कि किस तरीके से जो है हम C1 और C2 फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यू नो इक्वेशन 3.7, ये जो 3.7 इक्वेशन है, यहाँ से जो है ना जो एट टाइम t इक्वल टू 0, ठीक है, जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट है उसको हम x नॉट कहते हैं, एंड एट टाइम t इक्वल टू 0 the velocity is 0, ठीक है, because it is not it is actually stationary over there, okay। initial लेकिन टाइम t इक्वल टू 0 के ऊपर इसकी वेलोसिटी जो है ना वो 0 है, because it is sorry it is not 0, 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, you can take that velocity as 0, but you know you can start for analysis already you are getting system here, and you have actually started your analysis from you know at any time, जो टाइम सिस्टम ऑलरेडी अपडेट कर रहा है, लेकिन आपने जब एनालिसिस स्टार्ट की तो दैट इज एक्चुअली योर यू नो टाइम t इक्वल टू 0, ठीक है। टाइम t इक्वल टू 0 के ऊपर वेलोसिटी जो है ना आपके पास 0 की हो सकती है, और कोई वेलोसिटी जो है ना आर्बिट्ररी वेलोसिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो बहरहाल इसी इक्वेशन 3.7 से जो है ना आप यू नो C1 और C2 को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। टाइम को 0 को पुट करें तो आप जो है ना इसको C1 को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, बिकॉज काज 0 इज 1 और ये साइन 0 जो है 0 जाएगा, C2 खत्म हो जाएगा। फिर जो है ना यू नीड टू डिफरेंशिएट 3.7, तो x डॉट ऑफ t आपके पास आ जाएगा, और इसको भी आप डिफरेंशिएट करेंगे सारों को, ठीक है। बुक में भी नहीं किया, डायरेक्टली जो है ना इसमें लिखा है। तो फ्रॉम दिस, ठीक है, यू नीड टू डिफरेंशिएट इक्वेशन 3.7 once and put dot t at time t equal to 0 equal to x naught dot, ठीक है। और इसको जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास T2 की वैल्यू, बिकॉज ये सेम हो जाएगा ना तो ये 0 हो जाएगा, C1 कैंसिल हो जाएगा। So from equation 2.1 you can find out the value of C1 and C2 in terms of system parameter or in terms of initial displacement. So this is known, all these things are known, C1 जो है आपके पास मिल जाएगा, and C2 will also be known to you. Now if you put this back in equation 3.7, तो आपके पास जो x of t total response of the system आएगा, this is C1 cos omega nt, this is C2 sin omega nt, and this is this one. Equation 3.9 is the total response of the system as far as harmonically excited vibration. अब इसमें एक चीज है, उसको थोड़ा सा और हम इलाबोरेट करते हैं, और वो इलाबोरेशन चले आगे हम देख लेंगे, बट दे आर सेइंग दैट इक्वेशन 3.6 जो है ना दिस वन, ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी जो है यहाँ से ये लेता है फ्रॉम दिस इक्वेशन 3.6, ठीक है, इक्वेशन 3.6 दिस इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो x बाय डेल्टा एस टी आ जाएगा, ठीक है, x बाय डेल्टा एस टी, और ये आपके पास 1 ओवर दिस थिंग आ जाएगा। ये x बाय डेल्टा एस टी जो है ना दैट इज द रेशियो, ठीक है, x बाय डेल्टा एस टी इज इक्वल टू वही है 1 ओवर 1 माइनस ओमेगा ओवर ओमेगा n होल स्क्वायर। दिस x दैट इज द डायनामिक रिस्पांस डिवाइडेड बाय द स्टैटिक रिस्पांस, स्टैटिक डिफ्लेक्शन। इस रेशो को इसने टर्म किया है दैट इज मैग्निफिकेशन मेथड, ठीक है, और मैग्निफिकेशन फैक्टर आपके पास इस चीज के बता देता है। तो कैपिटल एक्स बाय स्टैटिक डिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट्स द एक्सक्यूज मी रेशियो ऑफ, सर, सर ये दोबारा समझिए। इक्वेशन 3.6 जो है ना हमारे पास है, ठीक है, राइट, दिस इज इक्वेशन 3.6 which relates dynamic, स्लाइड चेंज, तो चेंज मैंने किया ना, दिस इज इक्वेशन 3.6, सर शो नहीं हो रहा। राइट। क्या शो नहीं हो रहा, मतलब स्क्रीन शो नहीं हो रहा? 3.6 हुआ स्लाइड सर, अभी शो हो गया। इक्वेशन, ओके, सो दिस इज इक्वेशन 3.6, दैट इज, मैं पढ़ता हूँ इसको, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, ये दूसरा, स्टैटिक डिफ्लेक्शन डेल्टा एस टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ओमेगा और ओमेगा इन होल स्क्वायर, दैट्स इट, इसको हम कहते हैं इक्वेशन 3.6। अब इस इक्वेशन 3.6 से जो है ना हम फाइंड आउट करते हैं कि भाई हमारे पास जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से
capital X divided by static deflection means dynamic amplitude of motion to static amplitude of motion. This is equal to this thing. इसको जो है ना ये नाम देता है मैग्निफिकेशन फैक्टर या एम्पलीट्यूड फैक्टर या एम्पलीट्यूड रेशो. ठीक है, this is actually known as amplification factor or you know magnification factor or amplification factor or magnitude ratio. ठीक है, now इससे जो है ना this is actually an important term. You can see here यहाँ पे जो हमारे पास ओमेगा ओवर ओमेगा एन है ना, दैट इज व्हाट ओमेगा ओवर ओमेगा एन, दैट इज द फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय नेचुरल फ्रीक्वेंसी. इसको हम टर्म करते हैं आर जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी. ठीक है, इसको हम कहते हैं आर. तो यहाँ पे अगर यू कैन सी हियर कि इफ यू टेक दिस ओमेगा ओवर ओमेगा एन इक्वल टू आर एंड यू प्लॉट this magnification factor against R. ठीक है, इसको जो है ना अगर आप प्लॉट करेंगे ना, राइट, तो क्या हो जाएगा, यू कैन सी यहाँ पे इस चीज को समझे अच्छा, क्योंकि जो आगे स्लाइड है उसमें इसी चीज को थोड़ा सा एलेबोरेट किया गया है. लाइक लेट मी टेल यू, दिस इज द इक्वेशन 3.9 इज द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, दैट्स इट. एट राइट साइड एक्सेप्ट टाइम टी एवरीथिंग इज नोन. ठीक है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हम छोड़ सकते हैं. वाई? बिकॉज फॉर फोर्स वाइब्रेशन दैट इज हार्मोनिकली एक्साइटेड वाइब्रेशन, you found out the you derived the equation of motion 1, you found out the response of the system 2, so that's it. ठीक है, लेकिन आगे हम क्यों इसको एलाबोरेट कर रहे हैं, एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट. ठीक है, वो रीजन मैं आपको बताता हूँ. वो रीजन क्या है कि यू नो if you have this if you plot this magnification factor against frequency ratio, इसको हम कहते हैं frequency ratio. तो अगर ये आप प्लॉट करेंगे ना तो आपके पास इस तरह का आएगा. ठीक है, कि r लेस देन 1, ये आपके पास ये चीज है ना, x बाय स्टैटिक डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस r स्क्वायर. ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ. ठीक है, वेयर r इज ओमेगा बाय ओमेगा n, यही चीज है. तो यू कैन सी हियर कि अगर इसको आप प्लॉट करेंगे इस चीज को, राइट, तो फॉर r लेस देन 1 आपके पास ये आता है. ठीक है, इस तरह का प्लॉट आएगा r लेस देन 1, यानी r लेस देन फॉर एग्जांपल 0.1 0.2 0.3 0.6 एक्सेट्रा. तो ये अगर आप प्लॉट करेंगे ना, गिविंग डिफरेंट वैल्यूज टू r, यू कैन फाइंड आउट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x डेल्टा s t, एंड इफ यू प्लॉट दैट यू विल गेट दिस थिंग. ठीक है, and if you have this r greater than 1, right, let's say for example आपके पास 2 3 4 इस तरह का आपके पास आ जाए, तो यहाँ पे आपके पास ये माइनस में होगा, मींस इसके अपोजिट साइड से स्टार्ट करेगा लाइक दिस, ये इस तरह होगा. ठीक है, so if the frequency ratio that is denoted by small r, if it is greater than 1, you can get this graph. ठीक है, that is a definite function. And like for example at each and every r, let's say r is equal to 3.5 यहाँ पे है ना, so you can find out the value of magnification factor. ठीक है, similarly r is equal to 2.4 2.5, इसके ऊपर भी आप जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं. Similarly if you want to find out the value of the function, ठीक है, x of t, the total response of the system at let's say for example 0.5 r, तो ये भी आप जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं. But there is a condition where r is equal to 1. ठीक है, what does it mean? Omega over omega n is equal to 1. r you can say omega is equal to omega n, जो कि रेजोनेंस का कंडीशन है. यहाँ पे अगर ये चीज आप पुट करेंगे ना, r is equal to 1, so if you put r is equal to 1 here, ठीक है, तो 1 1 माइनस 1 ओवर 0, ये इन्फिनिटी आ जाएगा. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि मैग्निफिकेशन फैक्टर, राइट, 8 r is equal to 1, ये आपको क्या दे रहा है, ये इंफिनिटी दे रहा है. मींस दैट एट r is equal to 1 you cannot find out the value of value of the response of the system or an undamped system, क्योंकि ये इंफिनिटी आती है. बात समझ आ गई? तो इसका मतलब ये है, और हमारे पास जो सोल्यूशन होता है उसमें कोई इंफिनिटी का टर्म हम नहीं रखते. ठीक है, दैट शुड बी अ डेफिनेट सोल्यूशन, राइट. तो इसलिए जो है r लेस देन 1, द फ्रीक्वेंसी रेशियो r ग्रेटर देन 1,
इसके लिए तो हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है, बट एग्जैक्टली फॉर आर इज इक्वल टू 1 आपके पास क्या है, द फंक्शन बिकम्स इन्फिनिटी। तो इसलिए जो है ना वी कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू, बल्कि यहाँ पे आगे है भी, शायद एलेबोरेट किया गया हो, वी विल सी हियर, हाँ यहाँ पे है, ठीक है। तो ये चीज हम डिस्कस कर लेंगे कि भाई हमारे पास जो है ना ये इन्फिनिटी बन जाता है, तो इसके लिए जो है ना फिर हम इस इक्वेशन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसको थोड़ा सा और भी हम एलेबोरेट करते हैं। बात समझ आ गई आपको? यस सर। ओके, नाउ यहाँ पे यही चीज डिस्कस की गई है। अच्छा, यू कैन सी हियर कि इफ यू नो दिस आर वैल्यू इज इन बिटवीन 0 and 1, अगर आर की वैल्यू जो है ना आपके पास 0 और 1 के दरमियान हो, अपने माइक को टर्न ऑफ कर ले एनीबॉडी, आवाज आ रही है, टर्न ऑफ योर माइक प्लीज। अपने माइक को बंद कर दे काइंडली। सर सबकी माइक ऑफ है सर जी। अभी आप हो गई। ओके, so you can see here that for r that is in this range 0 to 1, अगर इस रेंज में आपके पास है ना, तो जो ये डिनोमिनेटर ऑफ 3.10 है ये वाला, देयर इज दिस वन, ठीक है। ये चलिए इसको मैं थोड़ा सा ये रब कर लेता हूँ ताकि ये, ठीक है। ये यही चीज मैं आपको बता रहा था कि इफ ओमेगा और ओमेगा इन दैट इज आर, ठीक है। ये आर अगर आपके पास इसमें हो 0 to 1 हो, ठीक है, तो अगर 0 to 1 है ना तो आपके पास ये रिस्पांस होगा, ठीक है। ये एक्साइटेशन है, you know very well, this is excitation, this is the maximum value, and how it changes or varies with respect to time, this यानी f of t जो है ना, तो ये जो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है f नॉट cos ओमेगा t, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है, ठीक है। f नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड इट नो it varies like this. Excitation, this is excitation, right, and this is the response क्या है, particular response, that is basically this one, right. तो कहता है कि if the r, that is the ratio of frequencies or the frequency ratio, if it is 0 in between 0 and 1, तो आपके पास क्या है, excitation and response they are in phase, ठीक है। ये in phase है, इसका क्रिस्ट तो इसका भी क्रिस्ट, फोर्सिंग फंक्शन का सॉरी इसका ट्रफ तो फोर्सिंग फंक्शन का ट्रफ, इसका क्रिस्ट एंड द रिस्पांस का आपके पास क्रिस्ट, सो दिस विल बी यू नो इन फेज रिस्पांस ऑफ द सिस्टम, ठीक है। यानी यहाँ से आप देख सकते हैं ना, यू कैन सी वेरी वेल। यहाँ पे अगर लेट से फॉर एग्जांपल इसको मैं आर, ये आर है ना, दिस इज आर, लेट से इफ आई पुट आर 0.5 हियर, ठीक है, तो 0.5 का स्क्वायर जो है ना वो क्या आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 0.25 इज 0.75, तो अगर यहाँ पे जो है ना 1 डिवाइड बाय 0.75 करेंगे तो आपके पास कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इजंट इट, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू आपके पास आ जाएगी लाइक दिस, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू का क्या मतलब है कि दे आर इन फेज विद ईच अदर, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली फॉर एक्साइटेशन एंड रिस्पांस, दे आर इन फेज, जिस साइड के ऊपर फोर्स लग रही है उस साइड के ऊपर रिस्पांस भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन इफ यू लुक एट दिस सेकंड केस जिसमें आपके पास ओमेगा और ओमेगा इन इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ओमेगा और ओमेगा इन ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है कि उसी को अगर आप x इज इक्वल टू डेल्टा एस टी डिवाइड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर, ये आपके पास है, ठीक है। तो इफ यू टेक दिस आर ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो ये लेट से आप 2 लिख लें, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर जो है ना ये 4 हो जाएगा, एंड 1 माइनस 4 ये -3 हो जाएगा। तो बहरहाल जो भी आपके पास है ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये माइनस में आपके पास आएगा, ठीक है। मीन दैट एक्स पी ऑफ टी विल बी इक्वल टू माइनस कैपिटल एक्स कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि नाउ द सिस्टम रिस्पॉन्स इज नॉट इन फेज बट दिस इज आउट ऑफ फेज, ठीक है। दिस इज द फोर्सिंग फंक्शन ट्रफ, so this is the crest of the response, and similarly we have the crest, and this one is trough. So if the frequencies are related like this, that the frequency ratio, okay, this is greater than 1, then response and excitation they are out of phase, ठीक है।
और अगर आपके पास ये जो तीसरा केस है, ये जो मैं आपको बता रहा था कि when ओमेगा और ओमेगा n is exactly equal to 1 means omega is equal to omega n, that is the forcing frequency is equal to the natural frequency of the system. ठीक है, तो उस टाइम जो है ना आपके पास लुक, ये आपके पास जो रिस्पांस होगा that will be you know that is the that is actually resonance, and you can see that कि यहाँ से ये टोटल सोल्यूशन है। अच्छा, तो ये आपके पास होमोजेनियस रिस्पांस है, एंड दिस इज फॉर द अदर टर्म। ये जो आपके पास है जिसमें ये यहाँ से आया है इक्वेशन 3.9 से, ठीक है, दिस वन। तो यहाँ से अगर आप ये लिख लें तो दिस इज एक्चुअली द टोटल रिस्पांस ऑफ द सिस्टम, वेयर यू कैन सी इफ आई पुट, नाउ यू कैन से दैट दिस इज बेसिकली टोटल सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जो टोटल रिस्पांस ऑफ द सिस्टम है। नाउ दिस equation 3.13 is valid for r greater than 1 and r less than 1, but what if r is equal to 1? यहाँ पे आप देख लें तो r को अगर हम 1 लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, तो दिस 1 minus 1 will be 0, तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि दिस होल टर्म will become infinity, right? and anything, यहाँ पे अगर आपके पास ये दो टर्म है ना, if it is having any value, but anything plus infinity आपके पास infinity के बराबर ही होता है। इसका क्या मतलब है कि for this omega over omega n equal to 1, r is equal to 1 के ऊपर आपके पास जो फंक्शन है ना, ये infinity वैल्यू आपको देता है, which should not be the case। ठीक है, ये जो आपके पास सोल्यूशन होगा, it should always give you a finite value, a definite value। ठीक है, तो इसीलिए जो है ना हम क्या करते हैं कि हम इस जो ये these two terms are okay, but this last term, ठीक है, इसके ऊपर फिर हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर डेल हॉस्पिटल या एल हॉस्पिटल रूल जो है ना हम अप्लाई करते हैं। आप लोगों ने कैलकुलस वगैरह में पढ़ा होगा, एल हॉस्पिटल रूल जो है बेसिकली लिमिट अप्लाई करता है। अच्छा, लिमिट अप्लाई करता है कि ठीक है, हमें पता है कि आर एग्जैक्टली इक्वल टू 1 के ऊपर, तो ठीक है आपके पास फंक्शन जो है वो इंफिनिटी है। व्हाट इफ द वैल्यू ऑफ द the function at in the neighborhood, ठीक है ना, r approximately equal to 1 के ऊपर इसकी क्या वैल्यू है, एग्जैक्टली 1 के ऊपर, तो इसकी वैल्यू जो है ना ये इंफिनिटी है, लेकिन वी आर लुकिंग टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन in the vicinity or in the neighborhood of r is equal to 1। इसको ये जब ये चीज हम करते हैं ना, इसके लिए हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करते हैं। वो क्या चीज है आपको पता होगा, तो बहरहाल वो इसने अप्लाई किया है, डेल हॉस्पिटल रूल लिमिट अप्लाई करके, ठीक है, लास्ट टर्म के ऊपर, रिमेंबर, ठीक है। तो लास्ट टर्म के ऊपर जब ये डेल हॉस्पिटल या डेल फेटल रूल जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो वो लिमिट अप्लाई करते हैं ओमेगा इज नॉट इक्वल टू ओमेगा एन बट इट अप्रोचेज टू ओमेगा एन, ये लिमिट हम अप्लाई करते हैं। अच्छा, तो अप्रोच करता है ना, तो फिर ये टर्म जो है वो डेफिनेट हो जाते हैं। यू कैन आल्सो सी हियर, ये एग्जैक्टली जो है ना 1 के ऊपर ही आपके पास इन्फिनिट है। इसकी विसिनिटी में अगर 0.9 के ऊपर देखें या 1.1 के ऊपर देखें तो इसकी कुछ वैल्यू है, यू कैन सी इट हियर। ठीक है, तो इसलिए जो है ना इन्फिनिटी, ये एल हॉस्पिटल रूल हम यूज करते हैं बहरहाल, और एल हॉस्पिटल रूल को जब आप यूज कर लें तो आपके पास जो है ना ये जो थर्ड टर्म है, इट बिकम्स ओमेगा एन टी डिवाइड बाय 2 sin ओमेगा एन टी विच इज अ डेफिनेट टर्म। और दोबारा जो है ना इफ यू पुट दैट इन इक्वेशन 3.13, तो आपके पास टोटल रिस्पांस ऑफ द सिस्टम जो होगा that will be x naught cos omega nt, x naught dot omega divided by omega n sin omega nt plus this thing. Now here in equation 3.15, except time at the right side, all the things are known, so you can find out the response, the total response of the system for this undamped force vibration that is harmonically excited। ठीक है, और इसका जो है ना आपके पास जो पर्टिकुलर रिस्पांस होगा, ठीक है, फॉर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप इस तरह पुट कर, मतलब आप इफ यू वांट टू प्लॉट इट, ठीक है, अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी रेशो, तो ये तो आपके पास इस तरह आता है। ठीक है, राइट, बट इफ यू अगर इसको आप प्लॉट करें यू नो अगेंस्ट टाइम, ठीक है, सोल्यूशन को, तो ये एसिम्प्टोटिकली जो है ना ये इंक्रीज करता है। ठीक है, आई शुड से दिस इज द रिस्पांस ऑफ द सिस्टम अंडर रेजोनेंस कंडीशन। तो ये रेजोनेंस कंडीशन के ऊपर जो है ना रिस्पांस ऑफ द सिस्टम है। और यही इफ यू रिमेंबर मैंने बिल्कुल शुरू में आपको बताया था
कि इफ यू ऑपरेट द सिस्टम एट रेजोनेंस फॉर लॉन्गर टाइम, ठीक है ना, ये लॉन्गर टाइम के लिए, ठीक है, अगर लॉन्गर टाइम के लिए जो है ना आप सिस्टम को इसी रेजोनेंस के ऊपर ऑपरेट करते हैं ना, तो आपके पास क्या होगा कि ये एजेंटोटिकली जो है ना आपके पास द सिस्टम रिस्पांस इंक्रीजेज एंड अल्टीमेटली ये जो है ना आउट ऑफ रेंज होके सिस्टम का फेलियर काज करता है, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली representation or graphical representation of the particular response of the system under resonance। तो इसीलिए जो है ना रेजोनेंस अगर थोड़े टाइम के लिए हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर लॉन्गर टाइम के लिए है तो फिर सिस्टम को शट ऑफ करते हैं या टर्न ऑफ करते हैं यूजिंग फीडबैक कंट्रोल, ताकि सिस्टम को फेलियर से बचाया जा सके, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया भी गया है कि द टोटल रिस्पांस ऑफ द सिस्टम इक्वेशन 3.7 एंड 3.9। तो ये जो है ना हम इस तरह अगर आप यानी ये जो इक्वेशन है दीज इक्वेशन इसको एक ही फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है, यानी आप अगर इसको खोल लेना ओपन अप कर लें तो वही आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो दिस वन इज यही इक्वेशन है, दिस वन 3. what is that 3.7 and 3.9, ठीक है, this is equation 3.7, this one, ठीक है, and 3.9। तो इसको जो है ना यू कैन सी हियर कि ये आपके पास फॉर these थ्री कंडीशन या केसेस जो है ना आपके पास अगर ये आर लेस देन 1 है ना तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये चीज पॉजिटिव होगी, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इफ आर इज ग्रेटर देन 1 तो ये फिर आपके पास ये नेगेटिव होगा, तो ये इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ये असल में 1 ये 1 माइनस इस तरह आपके पास आ जाएगा, तो माइनस को आप कॉमन ले लें तो ये चीज आपके पास आ जाएगी, ठीक है। आउट ऑफ फेज, दिस इज इन फेज एंड दिस इज आउट ऑफ फेज, ठीक है, राइट। ये सर आज के लिए इतना काफी है। नहीं नहीं, अभी तो हमने बहुत काम करना है, 3-4 क्लासें रह गई हैं, आपका एग्जाम होने है ना, सर कि नहीं? जी तो फिर हमारी दूसरी क्लास भी है ना, तो फिर आज के इतना कर क्या लेते हैं। काम हो गया? किस टाइम क्लास है आपकी? सर जी 10 बजे क्लास है ना नेक्स्ट। तो अभी तो 10 बजे, अभी तो आधा घंटा है। तो सर खैर है मतलब खैर थोड़ा अगर 10-15 मिनट का काम हो तो ठीक है सर, मतलब ज्यादा काम ना करे, इस वीक के लिए इतना काफी है। असाइनमेंट भी मिले है सर, हमारे क्विज भी मिले है, तो इसीलिए चले थोड़ा सा आगे हम जाते हैं, देन वी विल सी वो चले दूसरा जो है टॉपिक था इसमें, उसको इंशाल्लाह फिर बाद में हम करेंगे, बट एनीवे नाउ हियर उसी को जो है ना हम थोड़ा सा फर्दर एलाबोरेट करते हैं। एंड नाउ रिस्पांस ऑफ डैम्ड सिस्टम अंडर हार्मोनिक फोर्स। प्रीवियसली मैं आपको बताया था कि जस्ट टू मेक द प्रोसेस अ लिटिल बिट सिंपल इनिशियली डैम्पर को हमने निकाल लिया था, ठीक है। नाउ वी हैव जस्ट इंक्लूडेड द डैम्पर, बाकी सारी चीजें वही है लेकिन डैम्पर को जो है ना हमने इंक्लूड किया है, ठीक है। तो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी जो कि प्रीवियसली भी हमने देखा था कि mx डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के इज इक्वल टू एफ नॉट cos ओमेगा टी। अभी जो है ना ये ए टर्म हमने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही, इसमें भी ज्यादा उसको ये मैथमेटिकली डिस्कस नहीं किया, डायरेक्ट सॉल्यूशंस के ऊपर गया है। तो यू नो कि यहाँ पे जो है ना, अच्छा यू सी इफ यू डोंट हैव दिस डैम्पर तो हमारे पास टोटल सोल्यूशन वाज एक्स एच ऑफ टी प्लस एक्स पी ऑफ टी, राइट। और ये एक्स एच ऑफ टी जो हमारे पास था ना, दिस वाज व्हाट, दिस वाज सी वन cos ओमेगा इन टी प्लस सी टू साइन ओमेगा इन टी, राइट। लेकिन दिस वाज फॉर अनडेम्प्ड सिस्टम। डेम्प सिस्टम के लिए क्या होगा आपके पास, ये हमने डेवलप किया था, अच्छा इफ यू रिमेंबर। नाउ वी हैव डेम्प वाइब्रेशन, ठीक है, ये सी एक्स डॉट हमारे पास है। तो ये एक्स एच ऑफ टी हमने डेवलप किया था इफ यू रिमेंबर, वो क्या था, फॉर डेम्प फ्री वाइब्रेशन वी हैव दिस एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स नॉट e to the power minus zeta omega n t cos ओमेगा डी टी माइनस फाइव। इफ यू रिमेंबर हमने ये चीज डेवलप की थी। तो अब जो है ना हम एक्स एच ऑफ टी की जगह ये नहीं पुट करेंगे बिकॉज दिस इज फॉर अनडेम्ड सिस्टम, वी हैव डेम्ड सिस्टम, तो वी नीड टू पुट दिस वन। तो एक्स एच ऑफ टी ऑलरेडी हमने डेवलप किया है, दिस इज दिस थिंग, ठीक है। हाँ एक्स पी ऑफ टी जो है ना यहाँ पे भी हम फाइंड आउट करेंगे,
और एक्स पी ऑफ टी इनिशियली इस तरह एज्यूम करता है कि एक्स पी ऑफ टी इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। यहाँ पे क्यों हम cos omega t minus phi करते हैं? Because we have included the damper and we are expecting that there will be a lag or delay between excitation and response due to damper, ठीक है। तो हमारे पास damper को जब आपने इंक्लूड किया ना, तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी अ डिले इन द रिस्पांस और लेग इन द रिस्पांस। वो लेग जो है ना हम फिर यहाँ पे जनरली क्वांटिफाई करते हैं बाय यूजिंग दिस। ये प्रीवियसली हमने डायरेक्टली किया था एक्स पी ऑफ टी इज इक्वल टू कैपिटल cos ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे हमने लेग किया है। लेग क्यों बनता है मैंने आपको बताया कि दिस इज बिकॉज ऑफ दिस इंक्लूडिंग डैम्पर। बहरहाल ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाते। दिस इज ये आप कैसे करते हैं? यू नीड टू पुट दिस डायरेक्टली हेयर एक्स पी, दिस एक्स की जगह जो है ना डायरेक्टली आप ये पुट कर दें, अच्छा राइट। सिंगल डिफरेंशिएट करके यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, एंड डबल डिफरेंशिएट करके यहाँ पे पुट कर दें, डन। उसके बाद आप सिंप्लीफाई कर लें, तो सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, दैट्स इट, ठीक है। ये जहां से आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन 3.26 बुक ने भी जो है ना इसको डायरेक्टली किया है, बिकॉज वी हैव नथिंग टू डू विद हाउ टू पुट दीज वैल्यूज एंड वी आर नॉट वी आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन द अल्टीमेट सोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद जो है ना कि हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप है, अच्छा ये cos ओमेगा टी माइनस फाइव जो है ना, इसको जब आप ये cos अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो बहरहाल ये जो है ना आपके पास ये रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना दिस इज cos ओमेगा टी माइनस फाइव। तो इसको आप जब ओपन अप करेंगे ना और फिर आप यहाँ पे साइन और cos ओमेगा टी के कोएफिशिएंट्स को आप कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ फाइव। क्या मतलब है? look, what is this x of t? This is x h of t। ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके जहन में ये चीज हो कि where we are basically going, and this is x p of t, ठीक है। क्योंकि ये इक्वेशन जो है ना बाज़ औक़ात हमारे पास यानी थोड़ी सी कंजस्टेड हो जाती है, बट एटलीस्ट यू नीड टू नो। अब ये चीज हमें पता है, चल ये मैंने आपको बताया, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज दिस थिंग x नॉट e टू पावर माइनस जीटा ओमेगा इन टी cos ओमेगा dt माइनस फाइव, दैट्स इट। तो ये चीज आपको पता है। एक्स पी ऑफ टी किस चीज के बराबर है? क्या आपने एज्यूम किया था? एक्स पी टी दैट इज इक्वल टू एक्स राइट, एंड दिस इज cos ओमेगा डी टी माइनस फाइव, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि मैं इस तरह लिख सकता हूं, आई शुड राइट x of t is equal to x naught e to power minus zeta omega n t cos omega d t minus फाइव। आपके बुक में है चाहिए सारी चीजें, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आपके पास होमोजीनियस हो गया, प्लस ये जो पर्टिकुलर है ना कैपिटल एक्स cos ओमेगा डी टी माइनस दिस वन, ठीक है। तो इससे क्या मतलब है? ये चीज तो हमें लेट्स से नोन है। बाय इनिशियल कंडीशन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फाइव एंड एक्स नॉट। यहाँ पे जो है दिस इज एक्स, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे भी अननोन है, कैपिटल एक्स और फाइव। इसका क्या मतलब है कि फ्रॉम इनिशियल कंडीशन समहाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दीज टू, एंड फ्रॉम इफ समहाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स एंड फाइव इन टर्म्स ऑफ सिस्टम पैरामीटर। इन टर्म्स ऑफ सिस्टम पैरामीटर क्या मतलब है मेरा मतलब ये है कि x यहां से आपने फाइंड आउट किया ना, यू कैन सी दिस इज नाउ इन टर्म्स ऑफ सिस्टम पैरामीटर। इफ नॉट k m should also be known to you, omega this is the forcing function, c is the damping coefficient, so you can say that x is in terms of system parameters. You can find out the value of x in terms provided that you know about the system. सिमिलरली फाइव जो है ना ये भी सिस्टम पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये है कि इफ यू हैव डेवलप्ड दिस इक्वेशन 3.28 you can readily find out the physical value of capital X, you can find out the value of phi, and if you put this X and phi over here in terms of system parameter and from initial condition you find out the value of this phi, इसको फिर हम
एलेबोरेट करने के लिए सही लिखते हैं। एंड दिस एक्स नॉट फ्रॉम इनिशियल कंडीशन, तो उसके बाद जो है ना एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू राइट साइड के ऊपर एक्सेप्ट टाइम टी, सारी चीजें जो है ना आपको नोन होगी। एंड दैट इज बेसिकली रिक्वायरमेंट दैट एट राइट साइड if you put different values to time, you can find out the different values of or various values of x of t, and you can plot that. And that is basically a response of the damped force vibration under harmonic excitation. तो ये पूरा जो है ना आपके पास ये थीम है, ठीक है। बहरहाल थोड़ा सा इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए ये कहता है कि भाई ये चीजें आपको पता है कि भाई ये थोड़ा सा एजम्पशन ये हम पुटिंग करते हैं, ठीक है। यू नो दिस डैम्पिंग रेशो आपको पता है, and this is basically this one, and you know that static deflection is this one and frequency ratio is this one। तो क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि इन इक्वेशन 3.28 में जो है ना आप ये चीजें पुट कर ले, ठीक है। तो ये आप ये पुटिंग करेंगे ना, ये जो मैंने बॉक्स में इंक्लूड किया है या यहाँ पे इंकेप्सुलेट किया है, तो ये आप जब पुट करेंगे ना तो आपके पास जो है दिस एक्स एस टी, ठीक है। ये आपके पास ये प्रीवियसली हमारे पास फॉर अनडैम्प्ड सिस्टम एक्स बाय डेल्टा एस टी क्या था, दैट वाज 1/1 माइनस आर स्क्वायर, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास है एक्स बाय एस टी फॉर डैम्प्ड वाइब्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से ही आप निकालेंगे, अच्छा यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट फ्रॉम हियर, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा दिस वन, ठीक है। द एम्प्लीफिकेशन फैक्टर और द मैग्नीट्यूड रेशो that is equal to this one for damped force vibration. What is that? This is purely in terms of what? 1/, ये R बेसिकली आपके पास यही चीज है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ से आपके पास ये चीज आ जाएगी, एंड दैट इज वेरी ऑब्वियस बिकॉज यहाँ पे आपके पास जीटा आ जाएगा बिकॉज वी हैव डेम्पर ओवर हियर। तो 1/1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर होल स्क्वायर होल अंडर द रूट, दिस इज अ वेरी फेमस इक्वेशन फॉर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ठीक है। और जो आपके पास ऑब्वियसली you can say that this is your x and this is your y, तो x y by x जो है ना y by x ये आपके पास टेंजेंट इनवर्स के साथ ये आपके पास ये फाई आता है, एंगल आता है, ठीक है। तो बहरहाल इफ यू प्लॉट इक्वेशन 3.30 फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जीटा, ठीक है, तो यू कैन सी दैट एट हॉरिजॉन्टल you have r, that is frequency ratio, at vertical you have amplitude ratio, ठीक है, that is x by st। प्रीवियसली जो ये हमारे पास आ रहा था, राइट। this one we have plotted r against amplitude ratio for undamped vibration। अब ये damped vibration के लिए हमारे पास कैसे आएगा, और damped vibration this will be the graph, ठीक है। तो damped vibration में if you see here it अच्छा यहाँ पे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जीटा के लिए हमारे पास आया, अच्छा फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जीटा। तो जीटा क्या है, जीटा इज सी ओवर सी सी। तो अगर ये जीटा की वैल्यू 0 है ना, 0, इसका मतलब ये है कि सी भी आपके पास क्या होगा, 0 होगा, मींस अनडेम्ड सिस्टम होगा। तो अनडेम्ड सिस्टम क्या है, फॉर जीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यू कैन सी दैट एट आर इज इक्वल टू 1 आपके पास रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम क्या है, इन्फिनिट रिस्पॉन्स है। लेकिन उसी r is equal to 1 के लिए if you put zeta that is let's say for example zeta is equal to 0.3 means you have included the damper, ठीक है। तो क्या मतलब है कि this c is equal to 0.3 into cc और 0.32 m omega n। इसका मतलब ये है कि हमारे पास डैम्पर की कुछ वैल्यू है। नाउ यू कैन सी दैट फॉर द सेम you know at r is equal to 1 but now this time we have a damper, तो आपके पास वैल्यू क्या होगी, देयर विल बी अ डेफिनेट वैल्यू, ये आपके पास वैल्यू होगी मैग्निफिकेशन फैक्टर की, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन यस दिस इज एक्चुअली द मैक्सिमम वैल्यू, ओवरशूट है, ठीक है। लाइक यू नो फॉर r लेस देन 1 ये आपके पास ये वैल्यू है, ग्रेटर देन 1 के ऊपर भी आपके पास वैल्यू कम है। r इक्वल टू 1 के ऊपर वैल्यू जो है ना, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज आर द ओवरशूट इज देयर एट r इज इक्वल टू 1,
but it is having a definite value. Why? Because we have included the damper over here. और जितना जो है ना आप डैम्पर ज्यादा करेंगे, ठीक है, उसकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तो ये ओवरशूट जो है ये कम होता जाएगा, ठीक है, लाइक दिस. So this is basically for the damped vibration. ठीक है. So this is actually the total response of the system for a damped force vibration under harmonic excitation. X of t is equal to, ये मैं आपको बता रहा था, अच्छा, this one. तो ये आगे हमने लिखा भी था कि this is basically this thing, right, plus this is particular, this is a homogeneous solution, x h of t, and this one is the particular solution. So in homogeneous solution, you need to know about x naught and phi naught. How to find out these values from initial condition? 1. In particular solution, you need to know about capital X and phi. How you can find out the values of these two? And because you have actually converted these things into system parameters, ठीक है? तो ये जो है ना आपके पास capital X and this phi, they are now at right side. You have made a relationship between this dynamic response and are the maximum value X and phi. You have made a relationship of the system parameters with X and phi. So readily you know about the system, ठीक है. Input और output आपको पता है. Similarly system के properties आपको पता है. So you can find out the values of X and phi, and you can readily find out the overall response of the system, and that is basically required. Okay. So if you have a damped vibration, a damper present over there, spring mass and damper system, and it is under the force vibration, and the force is harmonic force. So the equation of motion will be mx double dot plus cx dot plus kx is equal to f naught cos omega t, right? And the response of the system will be this one, provided that you know about initial condition and system parameters. ठीक है. सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सिंग फंक्शन एंड रिस्पांस. तो अगर आप जो है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, सुपर इम्पोज किए गए हैं, अच्छा, एक दूसरे के ऊपर. तो एट द सेम टाइम अगेंस्ट ओमेगा टी इज बेसिकली थीटा, ठीक है. तो अगर आप ओमेगा टी अगेंस्ट फोर्सिंग फंक्शन, ये जो आपके पास सॉलिड है ना, दिस इज एक्चुअली योर फोर्सिंग फंक्शन, वेयर दिस इज द मैक्सिमम एफ नॉट, ठीक है, ये फोर्सिंग फंक्शन है. और जो इसका रिस्पांस है, दिस इज एक्चुअली दिस वन, ठीक है. तो जो अंडर फोर्स एक्साइटेशन और फोर्स रिस्पांस, तो ये क्या है, दिस एफ ऑफ टी इज फोर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, एंड एक्स पी ऑफ टी इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिस्पांस. तो ये है आपके पास इसका ये वैल्यू जो आपके पास होगी ना, दिस विल बी आई शुड से कैपिटल एक्स, ठीक है. तो ये जो है ना आपके पास रिस्पांस ऑफ द सिस्टम होगा. तो ये मैं आपको बता रहा था कि इफ यू नाउ इन दिस पोजीशन, इफ यू रिमूव दैट फोर्स, ठीक है, आर द सिस्टम टर्न्स ऑफ, तो वहां पे आपके पास जो है ये रिस्पांस, जो ये आपके पास एफ ऑफ टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी. तो ये जो आपके पास एक्स पी ऑफ टी है, इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, एंड टोटली जो है ना आपके पास जो टोटल रिस्पांस ऑफ द सिस्टम होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है. हाँ जी, यहां तक समझ आ गया आपको? यस सर. जी सर. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहरहाल Yes. आप बुक में देखेंगे, लेकिन रिमेंबर सिंस को समझे. दूसरी बात ये है कि आपके पास द अल्टीमेट रिजल्ट्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है. यानी आपके पास लेट से अगर ये चीज है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि भाई ये कहाँ से आया है, प्रैक्टिकली ये क्या शो करता है, इसमें जो चीजें या इसमें जो पैरामीटर्स या इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो क्या चीज शो करती है. इफ यू नो अबाउट दीज थिंग्स, आई थिंक दैट इज एनफ इवन टू सॉल्व प्रॉब्लम इन योर एग्जाम एंड अदर थिंग्स. हाँ, इफ यू नो कि ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, तो ऑब्वियसली डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अगर आपको पता है तो दैट विल बी वेरी गुड, ठीक है. चलिए इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम मैं तो कह रहा था कि ये लेक्चर खत्म कर लें, so this was important, but inshallah चलिए नेक्स्ट क्लास में जो है ना क्वालिटी फैक्टर या बैंडविड्थ से हम स्टार्ट करके, there are basically two topics, right? One is response of a damped system under the harmonic motion of the base, and one, this ये तो सिंपल है, क्वालिटी फैक्टर क्या चीज है, but you need to
ये मैं लेक्चर अपलोड कर लूंगा. दिस इज एक्चुअली योर असाइनमेंट 2. राइट अ कंप्रिहेंसिव नोट ऑन द रिस्पांस ऑफ अ डैम सिस्टम अंडर रोटेटिंग अनबैलेंस. ठीक है. इसमें सिंपल ये है ना कि आपके पास जो ये एफ ऑफ टी है, ये बुक में है. ठीक है. दिस एफ ऑफ टी, दिस इज बेसिकली योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. बात समझ आ गई आपको? ये क्या है? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की रिप्रेजेंटेशन यू नो वेरी वेल कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. एम आर स्क्वायर से. तो जस्ट इसमें ये फर्क है कि द फोर्सिंग फंक्शन इज डिफरेंट. ठीक है. तो ये बहरहाल आप खुद से कर लें. दिस इज यू नो वेरी वेल. यहाँ पे बिल्कुल मैंने आपको बताया था उल्टा करके. ठीक है. दिस इज एक्चुअली इन दिस पोजीशन. तो ये आपके पास दिस वी हैव 2 स्प्रिंग्स एंड अ डैम्पर. इसका इक्विवेलेंट आपके पास स्टिफनेस आ जाएगी और यहाँ पे जो है ना ये डैम्पर है. एंड वी हैव 2 मासेस. ठीक है. दैट इज m/2 एंड दिस इज आल्सो m/2 एंड दे आर eccentric, or this is actually the radius. Okay. And they are rotating in this fashion. For example, they are rotating. Now during this rotation, the forces are applied on the system, and if you have constrained the system to not to move in the horizontal direction, a force will be applied either in the upward or in the downward direction. Okay. And that force is applied on the spring and damper, and this will be under vibration. So you need to find out the equation of motion, and I think मेरे ख्याल में यहाँ पे equation of motion की हद तक ही है, and you need to solve this equation to find out the response of the system. ठीक है. तो ये जो है ना आप फिर देख लें. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम we will discuss about the quality factor and then harmonic motion. सर जी काइंडली रिकॉर्डिंग जो अभी हुई इसको अभी अपलोड कर लो सर. अच्छा ठीक है. मैं अभी बस ये बंद करके जितने टाइम में ये आता है फिर शेयर करता हूँ आपके साथ. अब सर लेक्चर स्लाइड. ओके. तो 2 चीजें जो है ना इस लेक्चर में रह गई हैं. 1 क्वालिटी फैक्टर, वो तो सिंपल वो एक चीज है, डिस्कस करेंगे. द नेक्स्ट थिंग जो इम्पोर्टेंट है दैट इज बेसिकली एक्साइटेशन फ्रॉम द बेस. और ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि इस चीज को आपने समझना है. एंड द रीजन इज दैट कि वी विल डिस्कस अबाउट वन टाइप ऑफ वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मे बी इन नेक्स्ट क्लास. और उस वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको हम वाइब्रोमीटर या एक्सेलेरोमीटर या वेलोसिमीटर कहते हैं, उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, दिस इज बेसिकली वो इस टॉपिक के साथ रिलेटेड है. तो इफ यू नो अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है, एंड इफ यू स्टडी दिस वन, तो वो वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को समझना जो है दैट इज वेरी वेरी सिंपल देन. ठीक है. तो इंशाल्लाह इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में, एंड आई विल ट्राई टू कपल इट विद इवन दैट वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. और वो बेसिकली आपके पास क्या है, दिस इज यू नो प्रीवियसली हम डिस्कस कर रहे थे कि दिस इज ना, यहाँ पे आपके पास जो मास है, स्प्रिंग डैम्पर है, एंड इट वाज अटैच्ड टू अ फिक्स सपोर्ट. राइट. दिस इज एक्चुअली नॉट मूविंग. ठीक है. इन प्रीवियस केसेस. अब इस केस में जो हम डिस्कस करेंगे रिस्पांस ऑफ डैम्प सिस्टम अंडर हार्मोनिक मोशन ऑफ द बेस. अब हम यहाँ पे वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट दिस इज अ फिक्स सपोर्ट, रादर दिस यू नो जो बेस है आपके पास, दिस इज एक्साइटेड. ठीक है. और ये हार्मोनिक एक्साइटेशन अगर आपके पास है, तो कैसे जो है ना हम इसका इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं और कैसा इसका रिस्पांस होता है, और वो रिस्पांस जो है ना फिर हम कैसे मतलब यूज करते हैं टू फाइंड आउट और टू लुक एट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलेरोमीटर, वाइब्रोमीटर एंड वेलोसिमीटर. तो इंशाल्लाह ये फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो है वी विल ट्राई टू डिस्कस इट. राइट. ओके सर. ओके जी. थैंक यू. सर जी बस अभी हमारे थैंक यू सर. सर रिकॉर्डिंग भी सेंड करे, लेक्चर स्लाइड्स भी सेंड करे सर. ओके.